Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your teacher Dr. Saima Kadir from UAE Jorabad campus. This course is Introduction to Statistics and Probability, and our today's topic is mean, median, mode. Basically, these are all the measure of central tendencies. Now, dear student, first of all, we must know about what is central tendency. Before these lectures, you have learned about the condensation of data into frequency distribution and visual presentation about the data, but these are not enough when we talk about the practical purpose, and particularly when two or more different sets are to be compared. So in those cases, frequency distribution or visual presentation are not enough. For this, a data set can be summarized in a single value. In this case, when two or more data sets are compared, and such a single value usually somewhere in the center, somewhere it occur in the center of the data set and representing the entire data set. Mean this value at which the data has a tendency to concentrate. The tendency of the observation to cluster in the central part of data set is called the central tendency. कि किसी central part में जब पूरा हमारा जो observations हैं वो cluster होती हैं तो उसको हम central tendency कहते हैं, या उसे हम summary value, या फिर हम उसको ये भी कहते हैं कि measure of central tendency कहते हैं. ठीक है, तो इस measure of central tendency को mostly generally जो इसको किया जाता है वो average से जाना जाता है. So, but you know that in everyday language, average is often understood to refer arithmetic mean. So for this reason, when someone is talk about that it's a central tendency, it's a average, so it means they are not aware about the particular terms of the central tendency. So central tendency have different terms जिनको हमें जानना ज़रूरी है, और किस तरह वो डाटा पे अप्लाई होती हैं, किस तरह उनके लिए कौन कैसे फार्मूलाज चूज़ किए जाते हैं, तो उसको हम जो है वो इस आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट दैट. In statistics, the three most common measure of central tendencies are mean, median, and mode. As you see in this slide, mean जो है वो क्या है, it's average of the data. अगर हम समराइज़ करें इनको सिंगल डेफिनेशंस में, तो मीन इज़ द एवरेज ऑफ द डाटा, while the median is the middle value of the data, and mode is the most commonly occurring value of the data. Now we will move toward the mean in somehow detail. In detail, the mean of a data set or a measurement is the sum of all measurements divided by the total number of measurement set. It is also known as the arithmetic average, and
it is the probably the measure of central tendency that is most familiar. This term is familiar, most familiar by all, and लोग यही समझते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने की दिस इज़ द ओनली टर्म, बट in statistics we know that median and mode also exist. Mean can be used for both discrete and continuous data, but most commonly it is used for the continuous data. Now first we should know that what is ungrouped data. Ungrouped data is a type of data set on which no treatment has applied, मीन उसको किसी क्लासेस में या ग्रुप में उसको हमने अरेंज या ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ, इट्स अ रॉ डाटा. सो मीन फॉर अनग्रुप डाटा एंड मीन फॉर ग्रुप डाटा हम बेसिकली इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. अब अनग्रुप डाटा जो है वो दो तरह का हो सकता है, फ्रॉम पॉपुलेशन and from sample. If we compute the mean of the population, we call it parametric or population mean, and that population mean is denoted by mu. And if we get the mean of the sample, we call it sample mean, and it is denoted by x बार, x के ऊपर बार लगा दी जाती है. Here are the formulas for mean of ungrouped data. Population mean is equal to sum of all items divided by number of all items. For the sample mean, इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द आइटम्स इन सैम्पल डिवाइडेड बाय टोटल आइटम इन द सैम्पल. ठीक है. Here the representation of the formulas. Mu is equal to sum of xi and divided by capital N. Capital N is the number of items in the population, while the sample mean x bar is equal to sum of x divided by small n. Small n number of items in the sample. So हम अनग्रुप डाटा का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं. If the data come from the population, then we use the mu. If the data come from the mean, from the sample, we use the x bar. Mean of group data. We must know about the group data. It is a sorted data from raw data. यानी हमने जब रॉ डाटा को ग्रुप्स और क्लासेस में ऑर्गेनाइज कर चुके होते हैं उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं. और हेयर इज द in this slide you can see the formula for the mean of group data. X bar is equal to sum of fx. F is a frequency and x is the mid interval value of each class. उनको मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी को उस क्लास के मिड इंटरवल से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सम करते हैं और उसको फिर n से डिवाइड कर देते हैं. हेयर n इज़ द टोटल फ्रीक्वेंसी. तमाम क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज़ को हम प्लस कर ले देते हैं और जो वैल्यू आती है उसको वो क्या आती है, टोटल फ्रीक्वेंसी. x bar is mean, f frequency of each class, x small x is the mid interval value of each class, n
total frequency, or sum of fx, sum of the products of mid interval values and their corresponding frequency। जी हर क्लास का हम मिड इंटरवल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, और उस पूरे कॉलम का हम सम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। Here is the example of mean for ungrouped data. A study was conducted, and in a hospital they get the weight, birth weight of newborns। तो उनको लिख दिया गया 3.3, 6.1, 5.8, 3.8, 2.7, 4.1, 3.4, 3.9, 5.13. These are the birth weights of newborn, and this data was collected from a hospital, and because it's a sample तो हम x बार यूज़ करते हैं, और इन x बार is equal to sum of all x divided by total number of those newborns जो कि जिनका वेट लिया गया। तो इन तमाम 10 वैल्यूज़ को हमने प्लस कर दिया, और जो हमारे पास वैल्यू आई वो 41.2 है, और हमने उसको डिवाइड कर दिया 10 से। तो जो हमारा आंसर आया इस मीन का वो है 4.12 kg। हम इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि इस पूरे डाटा को हमें, वैसे ये एक बहुत बड़ा फिगर्स थी जिनको हम नहीं समझ पा रहे थे। अब इस मीन के फार्मूला को लगाने के बाद वी गेट अ सिंगल वैल्यू, और इस सिंगल वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि मीन जो वेट है इन न्यूबॉर्न्स का वो 4.12 kg है। यानी 4.12 में ये वो सेंटर पॉइंट है, ये वो सेंटर टेंडेंसी है जहाँ पे ये वो क्लस्टर है पूरी ऑब्जर्वेशन का, और जिससे हम लोग एक सिंगल वैल्यू से हम डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, डाटा को समझ सकते हैं कि ऑन एवरेज जो ये जितने भी न्यू बर्न्स आए उनका वेट ऑन एवरेज जो है वो कितना था, 4.12 kg। Here is the example of mean for group data। 100 फैमिलीज़ का सर्वे किया गया, और उनमें देखा गया कि कितनी जो है ना उनके मेल चिल्ड्रन की जो नंबर्स हैं वो कितनी फैमिलीज़ में कितने हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दी गई, और उसमें ये था कि 0 मेल चिल्ड्रन जो है वो 9 फैमिलीज़ के पास बिल्कुल मेल चिल्ड्रन नहीं थे, 24 के पास 1 मेल चिल्ड्रन था, 35 के पास 2, 24 के फैमिलीज़ के पास 3, 6 फैमिली के पास 4 एंड 2 फैमिली के पास 5। अब इसका हमने जो है वो मेल चिल्ड्रन का मीन फाइंड करना है कि मीन कितना है। हम अगर एक सिंगल वैल्यू से डाटा को इंटरप्रेट करना चाहें कि मेजॉरिटी फैमिलीज़ के पास कितने मेल चिल्ड्रन हैं, मेजॉरिटी फैमिली के पास सेंट्रल वैल्यू हमने उसकी फाइंड करनी है। तो हमने ये इस डाटा को हमने टेबुलेटेड फॉर्म में कर लेना है। एक्स का कॉलम जिसमें नंबर ऑफ़ मेल चिल्ड्रंस हैं, फ्रीक्वेंसी जो है ये जितनी फैमिलीज़ उनको, जिन फैमिलीज़ के पास फैमिलीज़ का नंबर है जिनके पास ये जितने जितने मेल चिल्ड्रंस हैं, और फिर हमने थर्ड कॉलम में एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट बना लिया। वो जो एक्स हमारे पास मेल चिल्ड्रंस का डाटा था और जो फ्रीक्वेंसी का सेकंड कॉलम है उसको हमने थर्ड कॉलम में
fx कर दिया, प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, और नीचे हमने सम कर दिया, फ्रीक्वेंसी के कॉलम को भी सम कर दिया और वो जो एफ एस का प्रोडक्ट था उसको भी सम कर दिया। उसको सम करने से जो एफ एस का प्रोडक्ट का फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास एक्स था उसका प्रोडक्ट आया हमारे पास 200, और फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास प्रोडक्ट आया वो था 100। अब हमने इन वैल्यूज़ को फार्मूलाज में पुट किया तो हमारे पास एक्स बार 2 आया, मीन वैल्यू हमारे पास 2 है। सो कैसे इंटरप्रेटेड करेंगे कि ज़्यादा जो है जिन फैमिलीज़ के पास, या एवरेज जो मीन ऑफ मेल चिल्ड्रन है वो क्या है, 2 है, कि 2 जो है वो मीन है, जितने यानी ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं उनके पास कितने हैं, 2 मेल चिल्ड्रंस हैं। अगेन एन एग्जाम्पल of mean calculation from a group data। ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है और एक कंपनी को ऑर्डर रिसीव होते थे ड्यूरिंग पास्ट 50 डेज़ में, तो उसका हमने मीन कैलकुलेट करना है। तो पहला वो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जो हैं वो क्या हैं, 10 से 12 भी हो सकते हैं। पहली क्लास जो है वो 10 से 12 है, दूसरी क्लास 13 से 15 है, तीसरी क्लास 16 से 18 है, एंड फोर्थ वन 19 to 21। और फ्रीक्वेंसी हमारी है ईच डे में जितने जो है वो ऑर्डर रिसीव है 4, 12, 20 एंड 14, इनको प्लस कर दिया, एन हमारे पास क्या आया 50। अब हम इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना लेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या था कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया हुआ, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, ठीक है। तो वो उसको हम वो हमारी क्लासेस बनी हुई हैं, सेकंड कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी ले आएंगे, थर्ड कॉलम में हम इन क्लासेस का मिड पॉइंट या मिड इंटरवल जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। और वो कैसे फाइंड की जाती है, हम अपर क्लास और लोअर क्लास को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने पहली क्लास की आप देखें 10 प्लस 12, इसको अगर जब हम प्लस करेंगे तो ये 22 बन जाता है, और उसको हम किस से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 11। इस तरीके से हर क्लास का हम मिड पॉइंट x जो है फाइंड कर लेंगे। अब इस मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, fx का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। जैसे 11 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमारे फर्स्ट 44 आंसर आया। अब fx जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है, हम उस वी विल टेक द सम ऑफ दैट कॉलम एंड अगेन sum of the frequency, and we will put these value in formula and we get the 16.64। तो मीन जो हमारे पास उनके पास जो ऑर्डर आते थे एक दिन में वो कितने थे, 16.64 तकरीबन उनको ऑर्डर जो है वो रिसीव, उस कंपनी को मेल ऑर्डर जो है वो रिसीव होते थे। नाउ सेकंड measure of central tendency is median। Median is the middle value of a data set and it split the data set in two half, upper half and lower half। तो median when we want to find the median, first we have to order our data
from smallest to largest, and then find the data point that has equal amount of values above it and below it. We will find out a point, the point that has an equal amount of values above from it and below from it, and that point basically is the median of that sorted data. Mean of group data. We must know about the group data. It's a sorted data from raw data, यानी हमने जब raw data को groups और classes में organize कर चुके होते हैं उसको हम group data कहते हैं. और here is the in this slide you can see the formula for the mean of group data. X bar is equal to sum of fx. F is a frequency and x is the mid interval value of each class. उनको multiply करके frequency को उस class के mid interval से हम multiply करते हैं और उसको sum करते हैं और उसको फिर n से divide कर देते हैं. Here n is the total frequency. तमाम classes की frequencies को हम plus कर ले देते हैं और जो value आती है उसको वो क्या आती है, total frequency. X bar is mean, f frequency of each class, x small x is the mid interval value of each class, and total frequency or sum of fx, sum of the products of mid interval values and their corresponding frequency. जी हर क्लास का हम mid interval value कैलकुलेट कर लेंगे और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ और उस पूरे कॉलम का हम सम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. Here's the example and इसको एक ये डाटा सेट दिया हुआ है हमारे पास 2 3 5 1 4 5 8. The first order, the first step of to find the median is you have to sort the data. You have to arrange the data from smallest to largest. Without arranging, we can't find the median. तो हमने डाटा को 1 2 3 4 5 5 8 में अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में और हमने देखा कि ये ऑड है, यानी इसमें हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, 7 हैं, तो ऑड है. तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, फर्स्ट वाला जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, n + 1 डिवाइडेड बाय 2. तो n हमारे पास 7 है, +1 8 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. फोर्थ इज़ नॉट अ मीडियन, इट शोज दैट फोर्थ पोजिशन पे जो नंबर है दैट इज़ मीडियन. th साथ लगा हुआ है. फोर्थ पोजिशन पे द वर्ड that is present at the fourth position is the median of this data set. तो यहाँ इत्तेफाक से यहाँ हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे जो वर्ड है वो भी 4 है. सो द मीडियन ऑफ दिस डाटा सेट इज़ 4. मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, ऐसा डाटा जिसको हमने क्लासेस में अरेंज कर लिया हुआ है. फॉर दिस वी फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फर्स्ट. हमें पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है और देन कैलकुलेट द मीडियन नंबर. हम मीडियन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, उस वो मीडियन ग्रुप या वो क्लास कैसे हम फाइंड करेंगे, n को 2 से डिवाइड कर देंगे. जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में देखेंगे. n/2 से जो हमारा प्रोडक्ट आएगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जहाँ वो करीब तर होगा उस क्लास को हम मीडियन क्लास कह देते हैं. आगे हम एग्जांपल में जब इसको डिस्कस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर इन अ बेटर वे. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डाटा.
L plus H over 5 in bracket n divided by 2 minus C. L represents lower class boundary of the that median group. F represent the frequency of median class, while the n is total frequency, total sum of जितनी भी हमारी क्लासेस हैं उन सब की फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो है. C cumulative frequency of class preceding the median class. Remember this point. This C is the cumulative frequency of class preceding the median class. Median जो ग्रुप हम जो प्लेस सेलेक्ट करेंगे, मीडियन क्लास सेलेक्ट करेंगे या ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, उससे ऊपर वाली, उससे पीछे वाली जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कम्यूनिटी फ्रीक्वेंसी वो हमने इसमें पिक करनी है. while the H represent the class interval, इंटरवल साइज ऑफ हमारी जो मीडियन क्लास है उसका हम इंटरवल कैलकुलेट करेंगे. Here is the example. Calculate the median from the following data. ये हमारे पास एक ग्रुप डाटा है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है इसकी. हमारे पास क्लासेस बनी हुई है 60 से लेकर 64, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, 65 से 69 की 5 है, 70 से 74 की 9 है, 75 से 79 तक 12 है, एंड इसी तरह हमारी ये सारी क्लासेस बनी हुई हैं. सबसे पहले हम इसको हमने जैसे भी स्टार्ट में बताया था मीडियन के ग्रुप डाटा के लिए हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. सो हम इस टेबल को थोड़ा सा मज़ीद इस पे वर्क करेंगे. तो पहला कॉलम जो है सॉल्यूशन के बाद जो टेबल है उसमें देखें आप, पहला कॉलम शोज़ द ग्रुप्स, सेकंड कॉलम शोज़ इट्स सिंपल फ्रीक्वेंसी, यानी ये पहले दो कॉलम्स बिल्कुल क्वेश्चंस की तरह हैं. थर्ड में हमने चूँकि ये ग्रुप्स में जो है था क्लास लिमिट्स थी, तो हमने क्लास बाउंड्रीज़ बना ली है. क्लास बाउंड्री आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में याद होगा कैसे हम करते थे. लोअर क्लास लिमिट्स में से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 0.5 एंड अपर क्लास लिमिट में हम ऐड कर देते हैं 0.5. और इस मकसद हमारा ये होता है टू मेक द इंक्लूसिव, क्लासेस को इंक्लूसिव करने के लिए. तो क्लास बाउंड्रीज़ हमारी बन गई. और फोर्थ में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि पहली क्लास होती है उसकी वही फ्रीक्वेंसी रहती है जो उसकी अपनी ओरिजिनल है 1. अब इस 1 में हम सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 में जब हम 5 को प्लस करेंगे तो 6. सो 6 इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास. इस 6 में हम थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड कर देते हैं. 6 में हम 9 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 15. सो 15 इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्लास. इस 15 में हम 12 प्लस कर देंगे तो 27 इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ क्लास. इस तरीके से हमने इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें. अब मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करना है, मीडियन क्लास को हाईलाइट करना है. और वो कैसे फाइंड करेंगे वो अब इट्स इम्पॉर्टेंट टू लिसन डैट. हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसीज जो आई हैं वो इन सब ये जो 1, 5, 9, 12, 7, 2 इनको जब हम प्लस करते हैं तो 36 है हमारे पास वैल्यू. 36 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं n डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास 18 वैल्यू आती है. अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में देखना है कि अगर तो हमें एग्जैक्ट 18 मिल जाती है तो फाइन, और लेट्स सपोज अगर 18 नहीं मिलती तो हमने देखना है 18 से जो बड़ा हो लेकिन करीब तर हो, ठीक है, वैल्यू उसको हमने पिक करना है. तो हम देखते हैं कि 18 से लार्जर देन 18 एंड नियर देन 18 वो कौन सी है 27. सो 27 वाली पूरी क्लास को आप क्या कर लें, सर्कल कर लें. दिस इज़ योर मीडियन क्लास और मीडियन ग्रुप. एंड हम इस क्लास और इस ग्रुप से जो है वो क्या लेंगे, तमाम अपनी चीज़ें लेंगे,
अपने फार्मूला में पुट करने के लिए। तो इसको हमने जब हाईलाइट कर लिया और इसको हमने सर्कल कर लिया, इसको हमने कंसिडर कर लिया कि दिस इज़ द मीडियन क्लास, तो हम इसका L ले लेंगे। L इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है जो कि कितनी क्या है 74.5। H जो है वो क्लास इंटरवल है और हम अपर H को हम जो है वो क्लास इंटरवल को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लास इंटरवल कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। गिव मी अ मिनट। आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसको किया भी हुआ है। हम इंटरवल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द क्लास बाउंड्रीज, और इसको हम कैसे कर सकते हैं, दो सक्सेसिव लोअर क्लास लिमिट्स या बाउंड्रीज को या टू सक्सेसिव अपर क्लास बाउंड्रीज या लिमिट्स को हम जो है ना वो उनको माइनस करें। जैसे हमारे पास टू सक्सेसिव कौन सी हैं क्लास लिमिट्स, 60 एंड 65, ये हमारी टू सक्सेसिव इकट्ठी जो है ना लोअर क्लास बाउंड्रीज़ हैं या लोअर क्लास लिमिट्स हैं। ठीक है, बाउंड्रीज़ जो हैं वो 59.5 एंड 64.5 हैं और लिमिट्स जो हैं वो 60 और 65 हैं। अब हम इनको माइनस कर देंगे, 65 में से 60 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है 5। इसी तरह 64.5 में से 59.5 जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 5। सो H जो है वो हमने क्लास इंटरवल फाइंड कर लिया और फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मीडियन क्लास कौन सी है 12। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना है आपने, ठीक है, वो क्या है 12 है। और ये 18 जो है ये क्या था, ये n डिवाइडेड बाई 2 था। 18 n हमारे पास क्या था 36 था और जब 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। -15, नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 15 represent the C and C is the cumulative frequency of preceding the median class। तो मीडियन क्लास हमारी कौन सी थी जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 थी। अब 27 नहीं लेंगे हम, इस मीडियन क्लास से पिछली वाली जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, दैट इज़ 15। हम पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन फार्मूला we get the median 75.75 कि ये वो इस पूरे एक ग्रुप डेटा का मिडल पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पे ये पूरा डाटा जो है वो क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। हाफ जो है वो इस 75 से नीचे है और हाफ जो है वो 75 से अबव है। ठीक है, तो बाय दिस formula, using this formula we can calculate the median of a group data। Now third measure of central tendency is mode। Mode is the value which occur most frequently in a set of observations। मतलब क्या कि हमारे डाटा सेट में वो वैल्यू जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, मीन इट इज़ रिपीटेडली अकर, और वो हमारा वो वैल्यू वो पॉइंट वो जो ऑब्जर्वेशन होगी दैट इज़ नोन एज मोड। एंड इट इज़ पॉसिबल फॉर द डाटा सेट टू हैव मल्टी मोड, मीन डाटा सेट have more than one values which occur frequently and whose frequency are the highest most। तो such type of data have the data set known as the multi-mode।
again first we have to find the mode of a ungrouped data. A data set is given in this slide: 4, 89, 65, 11, 54, 11, 90, 56. By visualizing this, इसको देखने से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है. The observation that occur most repeatedly या most with highest frequency is 11. So the mode of this data set is 11. ठीक है, 11 वो है जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आ रही है इस डेटा सेट में. Here is the example and इसको एक ये डेटा सेट दिया हुआ है हमारे पास 2, 3, 5, 1, 4, 5, 8. The first order, well, the first step of to find the median is you have to sort the data. You have to arrange the data from smallest to largest. Without arranging, we can't find the median. तो हमने डेटा को 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8 में अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, और हमने देखा कि ये ऑड है, यानी इसमें हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, 7 हैं, तो ऑड है. तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? फर्स्ट वाला जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, n+1 डिवाइडेड बाय 2. तो n हमारे पास 7 है, +1 8 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. फोर्थ इज़ नॉट अ मीडियन, इट शोज दैट फोर्थ पोजिशन पे जो नंबर है दैट इज़ मीडियन. TH साथ लगा हुआ है. फोर्थ here in this slide example is there to calculate the mode. एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया गया है जिसमें क्लासेस बनी हुई हैं. 40 से लेके 50 तक उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, 50 से 60 तक उसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, एंड 110 से लेके 120 तक जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है. दिखने में यही लग रहा है कि डाटा से कि जो 70 से 80 तक 80 वाली क्लास है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 15, वो क्लास जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी, क्योंकि उसकी 15 है फ्रीक्वेंसी. तो हम इस क्लास को क्या ले लेंगे, इस क्लास को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, मोड क्लास कंसिडर कर लेंगे. दैट्स इजी एज़ कम्पेयर टू मीडियन. मीडियन में क्लास को फाइंड करने के लिए पहले फार्मूला लगाना पड़ता था, n को 2 से डिवाइड करके, और फिर उसको उस जो आंसर को है उसको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में सर्च करना पड़ता था. हेयर इट्स क्वाइट ईजी टू फाइंड द मॉडल क्लास. और इस मॉडल क्लास से हम क्या ले लेंगे, अपने तमाम वैल्यूज़ ले लेंगे. L जो है वो इसकी लोअर क्लास लिमिट हो जाएगी जो कि है 70. FM जो है वो क्या है, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो कि 15 है. F1 जो है वो इससे मॉडल क्लास की पिछली क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है और वो 9 है. इसी तरीके से जो F2 है वो मॉडल क्लास से अगली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है. और बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन फार्मूला वी गेट द मोड 74.61. So 74.61 is the value that have the highest frequency in this data set, जो कि हमारे इस डाटा में सबसे ज़्यादा आ रही है. तो इस तरीके से हम we use these 3 measures, central tendency measures, mean, median and mode, and we have go through the formulas for ungrouped data and for grouped data. I hope कि आप सब लोगों को you will get the concept from this lecture. Thank you so much.